Let's get you now details of the Aryan Khan WhatsApp chats that exclusively we've accessed here on India Today. Let's decode for you what Aryan is seen discussing with a group of friends on a WhatsApp group. Aryan says, let's do cocaine tomorrow. And these messages were from just last month. Besides that, he even says, I'm getting you guys in trouble. He uses an expletive there that we've also beeped out. He's in fact saying with the NCB. This is again in the same group with his friends. So it's clear there that he is mocking them and threatening them as a joke that he'll get them in trouble with the NCB. Ironically, a month on, he's now in the Arthur Road jail because of the Narcotics Control Bureau. These two chats with his friends in a WhatsApp group in which Aryan is the admin is proving to be huge trouble really for Aryan Khan, because he speaks about getting cocaine, doing cocaine tomorrow, and then also mentions jokingly that he'll get them in trouble with the NCB. Let's tell you about the chats with Ananya Pandey. You see there it's mentioned as owner, that is Aryan Khan. Ananya Pandey is the other one. Ananya Pandey says it's in demand about weed. This is a chat from 2019. Now after that also in the entire conversation, you can see that Aryan then says, I'll take it from you in secret. Aryan says this to Ananya in the WhatsApp chat in response to Ananya saying it's in demand. And then you have Ananya saying, fine, in response to Aryan saying, I'll take it from you in secret. Remember, these chats are from 2019. After that, in the conversation, you have again Aryan specifically mentioning the weed. So there's no question or any room for doubt here. In this entire chat that you see, in the entire conversation, it starts with Ananya saying, now that I'm in the business. It's based on this that the NCB believes that she was supplying drugs to Aryan. Aryan asks Ananya, you brought the weed. Aryan again says Ananya because she didn't reply to that message. And then Ananya finally responds saying, I'm getting it. All of this is in fact a conversation that goes on soon after. And then you have Aryan saying, you brought the weed, and Ananya responding saying yes. These WhatsApp chats will prove to be huge trouble really for Aryan Khan, considering today the Bombay High Court is hearing his bail plea. His chats with Ananya Pandey as well as his other friends is out. I want to take this across to Arvind Oja. He's joining us live on this broadcast. He's accessed those chats for us here on India Today. Arvind, जो chats अभी मिला है उसमें आर्यन खान सिर्फ वीड के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोकेन के बारे में बात भी कर रहा है, और हमको ये भी जानकारी मिला है कि जो व्हाट्सएप चैट्स है एनसीबी के पास उसमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि आर्यन बल्क बाइंग किया था, 80,000 रुपीस वर्थ ऑफ वीड भी लिया था। जी देखिए, बिल्कुल तकरीबन 26 दिन हो चुके हैं इस पूरे न्यूज़ को लेकर पूरे देश की मीडिया वो चर्चा कर रही है। इंडिया टुडे ने पहली बार वो व्हाट्सएप चैट एक्सेस किया है, खासतौर पर फिलहाल जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। बैक टू बैक 2 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ क्यों हो रही है वो रीजन इंडिया टुडे के पास है। इंडिया टुडे के पास व्हाट्सएप चैट है आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच, जिसमें जो आर्यन है वो वीड की बात कर रहे हैं, वीड डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या पांडे कहती हैं कि आई एम गेटिंग इट। उसके बाद फिर वो आर्यन उनको मैसेज करते हैं कि क्या अरेंज हुआ। उसके बाद जो अनन्या पांडे है वो कहती है आई एम इनटू बिजनेस। उसके बाद आर्यन कहते हैं कि सीक्रेट तरीके से वो मुझे दे दो। तो ये जो चैट्स है, इसी चैट्स के आधार पर अनन्या पांडे से लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये चैट्स है ये अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो हमें एनसीबी के सोर्सेज है वो बता रहे थे कि जो अनन्या पांडे है उनको स्मॉल ड्रग सप्लायर के तौर पर एनसीबी की टीम देख रही है। हालांकि कोई बहुत एविडेंस नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये एस्टेब्लिश करना होगा कि अगर अनन्या ने अगर कोई कभी ड्रग सप्लाई किया था तो किससे खरीदा था, किसके थ्रू सप्लाई किया था, ये चेन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसी वजह से बैक टू बैक 2 दिन तक अनन्या पांडे से पूछताछ हुई। उसके बाद आगे की भी पूछताछ होगी। अभी कल वो नहीं आई थी, आज भी नहीं आई थी, लेकिन आने वाले दिनों में अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। ये चैट पहले राउंड में जब दिखाया गया था तो अनन्या पांडे ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को ये कहा कि मैं मजाक कर रही थी, जिसके बाद फिर से वो चैट दिखाया गया कि ये चैट में आप बोल रही हैं कि वो आप अरेंज कर देंगी, आई एम गेटिंग इट। ये सब क्या है, क्या आपने कभी ड्रग सप्लाई किया है या नहीं किया है, जिस पर वो काफी नर्वस हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तो दूसरे राउंड की भी उनसे पूछताछ हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
ये एस्टैब्लिश करना चाहती है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि क्या इन दोनों के बीच कोई ड्रग पैडलर है, कम से कम उस ड्रग पैडलर को अरेस्ट किया जाए, नंबर 1। दूसरा जो व्हाट्सएप चैट हमने एक्सेस किया है जिसमें आर्यन बकायदा कर रहे हैं कि लेट्स डू कोकीन गाइस, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोकीन लेने की बात हो रही है। तो इस तरह के जो चैट्स है, सबसे हैरानी की बात है कि इसमें एनसीबी की बात हो रही है। अगर आप देखिए तो पिछले 2 सालों में जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने खासकर बी टाउन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके बच्चों पर, उनसे जुड़े लोगों पर जिस तरह से क्रैकडाउन किया है, उसके बाद एनसीबी के एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं फियर, डर जरूर है, लेकिन लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि बाकायदा जब बातचीत हो रही है तो बोले कि क्या एनसीबी आ सकती है, एनसीबी पकड़ सकती है, तो इस तरह की चीजें भी इसमें हो रही है। हालांकि जिस तरह से एक्शन हुआ है 2 सालों में, एनसीबी पर भी सवाल उठे हैं और हमने ये सवाल पूछा भी था समीर वानखेड़े से कि आप पर आरोप लग रहा है कि सिर्फ आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को निशाना बना रहे हैं, जबकि कई ड्रग पैडलर वो मुंबई में घूम रहे हैं, आप ड्रग पैडलर को नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने कई ऐसे केसेस किए हैं, हमने 150-300 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस एक्शन पर जो क्रूज ड्रग बस्ट केस हुआ है, इस पर भी एनसीबी पर कई सारे सवाल उठे हैं, यहां तक कि एक्सटॉर्शन का भी सवाल उठ गया है, मुश्किल में घिरी है एनसीबी। लेकिन इन सब के बीच हमने वो चैट एक्सेस किया जिस चैट के आधार पर क्रैकडाउन किया, जिस चैट के आधार पर खास तौर पर जो अनन्या पांडे है उनसे पूछताछ हो रही है, उनको ये चैट दिखाया जा रहा है जो इंडिया टुडे के पास है, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ड्रग सप्लाई किया था आर्यन को, अगर किया था तो कब किया था, वो ड्रग आपने किससे लिया था। हमें सोर्स ये भी बता रहे हैं कि अनन्या से जुड़े कुछ लोगों से वो पूछताछ की गई थी, हालांकि सम्मन नहीं दिया गया था, नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन पूछताछ की गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है ये जो व्हाट्सएप चैट है ये अनन्या पांडे की मुश्किल तो जरूर बढ़ा सकता है। उसके अलावा जो सोर्स हमें वो ये भी बता रहे हैं कि जो ड्रग पैडलर है खास तौर पर वो जो सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं उनके बीच पेनिट्रेट कर रहे हैं, पॉश इलाकों में पेनिट्रेट कर रहे हैं, वहां पर ड्रग जो पैडलर है वो अपनी पैठ बना रहे हैं और ऑन डिमांड ये ड्रग जो है वो सप्लाई होती है। तो ये वो व्हाट्सएप चैट है जो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है, खास तौर पर जिसमें आर्यन तो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अनन्या पांडे जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, ये चैट उनकी मुश्किल तो जरूर बढ़ा सकता है। As Arvind also pointed out, so far when Ananya was confronted with these WhatsApp chats, she's mentioned that she was just joking. She even said at one point that she didn't know weed is a drug. That was in 2 rounds of questioning. Yesterday she was summoned a 3rd time, she didn't turn up. But there are 2 WhatsApp chats that we've accessed here on India Today. One you see on your screens between Aryan and Ananya that dates back to 2019. One is from just about a month ago, before Aryan Khan was detained, before all of this drama, where he's chatting with a bunch of his friends. And I want to take that across to Arvind as well. Arvind, जो ये chat हम दिखा रहे हैं अभी आर्यन उनके दोस्त के साथ, और आर्यन एडमिन है इस WhatsApp ग्रुप में, उसमें कोकेन के बारे में बात कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं इस ग्रुप में वो कौन है, अभी पता है क्या? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं और इनके कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में इंडिया टुडे को बाकायदा जानकारी भी है, जिसमें कुछ बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फैमिली के जो बच्चे हैं वो हैं इसमें, लेकिन अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ना ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी तक उन पर कोई एक्शन लिया है, तो इस वजह से हम उन नामों का खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एनसीबी के पास कुछ ऐसी जानकारी है कि कुछ और जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस ग्रुप में थे और कहीं ना कहीं ये बातचीत हो रही है ड्रग को लेकर। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, अभी तक हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, या तो जिन्हें एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है जैसे आर्यन खान, या जिनसे पूछताछ हो रही है, जिनके घर सर्च हुआ है और जिनको नोटिस देकर 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी की टीम ने बुलाया है, जिसमें जो अनन्या पांडे है उनको नोटिस दिया गया था 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत, उनसे पूछताछ हो रही है, उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है। 2 दिनों तक बैक टू बैक उनसे पूछताछ हुई थी। लेकिन हाँ, एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आर्यन है, जिसमें यह बात किया जा रहा है कि लेट्स डू कोकीन गाइस, तो उस पर बात हो रही है और उसमें काफी बातचीत हो रही है, उसमें उसी में एनसीबी का भी जिक्र हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस तरह के कई चैट्स हैं, मैं आपको यहाँ साफ कर दूं, जिसमें से कुछ चैट हमने एक्सेस किया है जिसमें जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है अनन्या पांडे, जिनसे 2 बार एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है, आगे भी पूछताछ उनसे होने वाली है।
तो उनका जो चैट्स है, और ये चैट्स कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो अनन्या पांडे की वो बढ़ाता दिख रहा है। वो मुश्किल में घिरती हुई अनन्या पांडे दिखाई दे रही है इस मामले में। तो ये अपने आप में काफी शॉकिंग एलिमेंट्स है, और यही चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बार बार वो दिखा रही है अनन्या पांडे को, उनसे पूछताछ कर रही है। हमें जो सोर्स है वो ये भी बता रहे हैं कि जो अनन्या पांडे के जो एक मेड है उससे भी पूछताछ की गई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। हालांकि इस दौरान एनसीबी की टीम पर कई आरोप भी लगे। समीर वानखेड़े फिलहाल दिल्ली में है, हाई कोर्ट में आज केस की सुनवाई है, इसलिए ये जो केस है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है। कल सेशन कोर्ट में बकायदा एनसीबी की तरफ से ये कहा भी गया था कि एनसीबी की टीम को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कई ऐसे चैट है जो अदालत में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दिए थे बकायदा एविडेंस के अलावा। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कई अलग अलग हार्ड ड्रग्स रिकवर किए गए थे, उसके अलावा चैट्स थे वो भी अदालत में दिए गए थे, और ये भी बताया गया था कि बल्क में एक जगह बल्क में ड्रग मंगवाने की बात है। हमें जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि आर्यन ने अचित नाम का एक जो ड्रग पेडलर है उससे 80,000 रुपए की एक ड्रग वो मंगवाई थी, मंगवाने की बात कर रहे थे उसमें। तो ये वो तमाम वो चीजें हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम न सिर्फ ड्रग की रिकवरी से बल्कि चैट से ये एस्टैब्लिश करना चाहती है कि ये एक बड़ा नेक्सस है। इसी आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था क्रूज पार्टी से, उसके जिसमें आर्यन भी शामिल थे, जिसमें आर्यन का दोस्त अरबाज भी शामिल था। अरबाज के पास से ड्रग भी रिकवर की थी, हालांकि वो स्मॉल क्वांटिटी में थी। लेकिन ये जो चैट, इस चैट में जो सबसे फिलहाल मुश्किलों वाला चैट है, जो मुश्किलों में घिर सकती है, वो अनन्या पांडे है, क्योंकि उनको जिस तरह का ये चैट है एनसीबी उनको एक स्मॉल ड्रग सप्लायर के तौर पर देख रही है, क्योंकि अगर किसी को आप ड्रग सप्लाई करते हैं तो अपने आप में कानूनी जुर्म है। लेकिन ये एस्टैब्लिश करना अभी एनसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। 2 दिनों तक सिर्फ पूछताछ हुई है, जिसमें पहले दिन अनन्या पांडे को जब ये चैट दिखाया गया था तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जो चैट है वो मजाक के तौर पर तो दिख नहीं रहा है। बाकायदा उसमें वीड को लेकर बात हो रही है, उसमें अनन्या पांडे कहती हैं कि आई एम गेटिंग इट, उसमें कहती हैं उसके बाद कि आई एम इनटू बिजनेस, उसके बाद उसमें सीक्रेट तरीके से ड्रग आर्यन बोल रहे हैं कि वो सीक्रेट तरीके से हमें दे दे। तो ये काफी इस तरह के कई चैट्स हैं जो अलग अलग आरोपियों के मोबाइल फोन से मिले हैं, जिसमें कई ड्रग पैडलर के साथ चैट है, जिसमें से कि आर्यन अनन्या पांडे का जो चैट है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाद मिला, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे के घर पर सर्च किया, उनका मोबाइल फोन सीज किया, उनका लैपटॉप सीज किया, उनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो सीज किया। उसके बाद उनको लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बैक टू बैक 2 दिन पूछताछ हो चुकी है, आने वाले दिनों में भी उनसे पूछताछ होगी, ऐसा एनसीबी के सोर्सेज ने हमें बताया है। लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किल तो जरूर रह सकता है। एनसीबी सोर्सेज के मुताबिक अरविंद, क्या अनन्या को अभी इस व्हाट्सएप चैट्स के बारे में और इस बेसिस पे क्या अनन्या को भी एक एक्यूज बना सकते हैं इस केस में? जी बिल्कुल, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन मोल्ड होता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर ये चैट अगर आप देखेंगे तो इसमें सस्पेक्ट के तौर पर तो जरूर नजर आती है विटनेस। अब मुझे कम से कम मेरी ये जानकारी है एनसीबी जो है वो सस्पेक्ट के तौर पर ही फिलहाल देख रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो चैट्स में बकायदा आर्यन कह रहे हैं कि वीड की डिमांड की बात हो रही है, और अगर वो कह रही हैं कि आई एम गेटिंग इट, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था कर रही है, वो जुगाड़ ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था कर रही हूँ, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि सीक्रेट तरीके से हमें दे दो। तो ये सप्लाई चेन हो रहा है, यानी अनन्या कम से कम इसमें ये दिख रहा है कि वो आर्यन अनन्या से मांग रहे हैं और अनन्या देने की बात कर रही है, तो ये काफी गंभीर हो जाता है। लेकिन इसके बीच की जो कड़ी है, जो चेन है, वो भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, कि ये बताना पड़ेगा। अगर इस तरह की अक्यूज के तौर पर देखती हैं कि अनन्या पांडे ने स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं से खरीदा या किसी से मंगवाया, उसके बाद सप्लाई किया, तो ये पूरा चेन स्टैब्लिश करना पड़ेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर कोई केस एस्टैब्लिश नहीं होता, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब ये केस जाता है खासकर एनडीपीएस में, तो ये व्हाट्सएप चैट भी काफी अहम हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब सेशन कोर्ट में ये पूरा आर्गुमेंट चल रहा था, तो उस आर्गुमेंट में जो चैट्स है, उन चैट्स का जिक्र हुआ था। उसमें एनसीबी की तरफ से जो लॉयर थे, उन्होंने बकायदा बल्क ड्रग की बात की थी, उन्होंने कई ऐसे चैट्स का जिक्र किया था, और वो बकायदा अदालत में सबमिट किया था। तो अदालत ने काफी 6 दिन का जब वक्त मांगा था, उस दौरान जज ने वो तमाम व्हाट्सएप चैट पढ़े थे, पूरी रिकवरी पढ़ी थी, जिसके बाद फिर बेल रिजेक्ट हुआ था
हालांकि 29 NDPS यानी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो पार्टी है उसको आधार बनाया गया था, लेकिन जो चैट है उसको भी कहीं न कहीं एनसीबी एक एविडेंस के तौर पर अदालत में रखती रही है और ये बताती रही है कि ये जो पूरा जितने लोग हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है वो काफी पहले से ड्रग ले रहे हैं, ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वीड की बात हो रही है, जिसमें कोकीन की बात हो रही है। Arvind, do stay on with us. We're going to continue getting you the latest updates on these WhatsApp chats that we've accessed here in India Today. Trouble mounting for Aryan Khan, who is already 19 days and counting in the Athol Road jail. Trouble also mounts for his friend, for actor Ananya Pandey, over these chats that are now on our screens. We're slipping into a very short break. We'll be right back with the latest updates and the reactions coming in on these WhatsApp chats.